السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، آج بتاریخ 19 فروری 2025 بروز تہار شنبہ بعد نماز مغرب مدرسہ دینیہ محمد علی ہال کا یہ بچوں کا سالانہ اجلاس ہے جو ابھی تک جاری و ساری ہے۔ بچوں نے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا۔ ایک بچے نے جنازے کی دعا پڑھی، بہت ہی چھوٹا بچہ تھا لیکن تلفظ کی ادائیگی اور دعا اتنے اچھے انداز میں پڑھا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالی ہماری قوم کے بچوں کو علم دین سے مالا مال فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی مجھ سے پہلے ایک خطیب نے یہ بیان کیا کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ اولاد سے محروم ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں صاحب اولاد بنائے، اور دعا بتاتا ہوں، انبیاء کرام اللہ سے دعا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو جن کے گھروں میں ابھی بچے نہیں ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ رب العالمین آخری وقت میں بھی اولاد سے نواز سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عمر میں اولاد سے نوازا۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارے بچے یہ ہمارے لیے اللہ کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ ہم نے تم کو اولاد دیا تھا لڑکوں کی شکل میں، لڑکیوں کی شکل میں، فماذا علمتہ وماذا ادبتہ، تم نے اس کو کون سی تعلیم سکھلائی اور کون سا ادب سکھلایا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم کر دیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیاوی تعلیم نہ دیں، دینی تعلیم دیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بچوں کو پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، لیکن صبح و شام بچوں کو مکتب میں ضرور بھیجیں،
इसलिए कि खाने में लज्जत और जायका उस वक्त आता है जब उसमें नमक डाला जाता है। और बच्चे सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा मकतब में आकर के जो दीन की तालीम हासिल करते हैं, 24 घंटा जो उनकी मशगूलियत है, उस मशगूलियत पर ये आधे घंटे का 1 घंटे का इल्म जो है ये भारी होता है। तो हमें चाहिए कि इस सिलसिले में गौर करें। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये छोटे छोटे मकतब, मैं देख रहा हूं मुसलसल मकातिब के सालाना इजलास हो रहे हैं और तमाम मस्जिदों में इसका एहतमाम किया जा रहा है। अगर सिर्फ शिवाजी नगर की बात करूं तो मेरे अपने इल्म के मुताबिक, नाकिस इल्म के मुताबिक, कमोबेश 500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हैं जो मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं। मकतब की तालीम, ये मकतब बड़े बड़े जामिया से भी ज्यादा अहम है। क्यों? इसलिए कि शिवाजी नगर जैसे जगह में जहां चंद मकातिब हैं, कमोबेश 500 बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक में आप देखें कितने जामिया हैं जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जामिया में जो बच्चे जाते हैं वो बहुत मुख्तसर होते हैं, उनकी तादाद 2%, 2.5% या ज्यादा से ज्यादा 3% है। लेकिन मकतब में जो आने वाले बच्चे हैं, मेरे ख्याल से, मेरे अपने इल्म के मुताबिक, ज्यादातर बच्चे मकतब में जरूर आते हैं। तो जामिया में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी तादाद 2%, 2.5% या 3% है, और मकतब में आने वालों की बच्चों की तादाद तकरीबन 80%, 85% है। तो ये मकातिब बड़े बड़े जामिया से, बड़े बड़े मदरसों से भी ज्यादा अहम है। इन बच्चों पर अगर सही मेहनत की जाए और उनको बचपन में ही दीन की तालीम दे दी जाए तो ये बड़े से बड़े स्कूल और कॉलेज में चले जाएं, इनके ईमान और अकीदे को कोई खराब नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है तो आप उस औलाद की सही तरबियत करें, सही दीन सिखाएं, ताकि आपके मरने के बाद ये औलाद आपके लिए दुआ करें। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो अपने बच्चों की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं। आजकल की शादियां, बेंगलोर की शादियां 15 लाख, 20 लाख से शुरू होकर के 50-50 लाख, 1-1 करोड़ एक शादी में लोग खर्च करते हैं। और जब बच्चों को तालीम देने की बात आती है तो कहते हैं हैसियत नहीं, ताकत नहीं है। आप अपने बच्चों को आला तालीम दें। आपका बच्चा तालीम हासिल करने की वजह से, इल्म हासिल करने की वजह से अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान कर देता, उसकी दुनिया उसके सामने कुशादा हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं, अपने बच्चों की शादियों पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं करते। आज समाज को जरूरत है अच्छे उलमा की, आज समाज को जरूरत है अच्छे डॉक्टर की, आज समाज को जरूरत है अच्छे लॉयर और वकील की, आज समाज को जरूरत है बेहतरीन बिजनेसमैन की। आज मुस्लिम मुआशरा हर एतबार से कमजोर होता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम दीन की तरफ, दुनिया की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो दें। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को बचपन से ही जिम्मेदार बनाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से उनके माँ बाप उनको जिम्मेदार नहीं बनाते। आपके ये बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, आप बचपन से ही उनको काम लें, माँ बाप की खिदमत करना सिखाएं, और जिस कदर उनकी उम्र बढ़ती है उनको जिम्मेदारियां दें। बाजार से सामान खरीद कर लाने का मुकल्लफ बनाएं, बच्चियों को घर का काम करने की आदत डालें। आज जो मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ हो रहे हैं, जो घरों में इंतशार हो रहा है, जो शादियां टूट रही हैं, उसके बहुत सारे असबाब हैं, जिनमें से एक सबब यह है कि बच्चा गैर जिम्मेदार है। बच्चे ने तालीम तो हासिल की, बच्चे ने पैसा तो कमाया, लेकिन उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसने घर के माहौल को संभालने का और घर के माहौल को किस तरीके से डील किया जाए
माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया। इसलिए औलाद, लड़का लड़की गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। लड़कियों की जो कमजोरियां आ रही हैं, लड़कियों ने आला तालीम हासिल की लेकिन घर में खाना पकाना उनको नहीं आता है, रोटी पकाना नहीं आता है, सालन पकाना नहीं आता है। हर घर में मेरे भाइयों, हो सकता है किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। हम अपने बच्चों को दुनिया के मामले में बहुत आगे बढ़ा देते हैं लेकिन उनको जिम्मेदार नहीं बनाते हैं। उनकी बीवी की जिम्मेदारी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, वालिदैन की जिम्मेदारी। बच्चियों को आला तालीम दे देते हैं लेकिन उनको घर संभालना, घर की जरूरियात को पूरी करना, घर के काम को संभालना हम बच्चियों को नहीं सिखाते हैं, जिसकी वजह से शादी के बाद मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात शुरू होते हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं, अपने बच्चों से काम लें, अपने बच्चों को प्यार के साथ साथ और उनको जिम्मेदारियां निभाने की हम बोझ डालें उनके ऊपर। इसी तरीके से हमें चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हम दुआएं करें। बहुत सारे माँ बाप, बच्चा बड़ा हो गया, बच्ची बड़ी हो गई, जब तक बचपन में थे तब तक उनको समझाया, उनके लिए दुआएं की और ये समझते हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब ये अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे। बच्चों को कभी भी वालिदैन की सरपरस्ती से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों पर निगाह रखे। मैं अक्सर लोग जानते हैं मेरे बच्चे की उम्र इस वक्त 26 साल की है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता होगा अगर मैं घर में हूं तो बच्चे को ताकीद किए बगैर घर से बाहर भेजा हूं। जब भी घर से बाहर निकलता है दुआ पढ़ के जाना, आराम से जाना, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाना, गाड़ी पर बैठने के बाद सफर की दुआ पढ़ना, ये बाप की जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। कभी भी बाप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता है। बहुत सारे हैं, बच्चों की शादी कर दिया, बच्चियों की शादी कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। बहुत सारे लोग कहते हैं सारे बच्चों की शादियां हो गई है, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फातिमा तुम दिन में काम बहुत ज्यादा करती हो, हसन हुसैन का ख्याल रखती हो, थक जाती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, जाओ उनसे कहो कि वो आपको भी कुछ गुलाम अता कर दें, लौंडियां अता कर दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं। उस वक्त आप घर पे मौजूद नहीं थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात होती है। अम्मा आयशा पूछती हैं, बेटी कैसे आना हुआ? वह अपने वालिद से मुलाकात के लिए आई थी। ठीक है, मैं आएंगे तो बता दूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार नहीं करती हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा से कितनी मोहब्बत करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर जाते तो वो दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करती थी। जब हजरत फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करते थे। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार नहीं किया। क्यों? इसलिए कि घर पे बच्चे हैं, उनके शौहर आने वाले हैं, ये जिम्मेदारी ज्यादा अहम है। कभी हमने अपने बच्चियों को ये एहसास दिलाया? कभी हमने अपने बच्चियों को ये बात बताई? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार नहीं करती हैं, घर वापस आ जाती, बच्चों को खाना पकाती हैं, उनके शौहर आते हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, शौहर को खाना खिलाती हैं। दोनों बिस्तर पर पहुंच गए। हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक बिस्तर पर सो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद की फिक्र जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, कुछ जरूरी काम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त नहीं देखा। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा के बाद जल्दी सोना और फजर में जल्दी उठने की आपने तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत फातिमा के घर में आए जब दोनों बिस्तरों पर जा चुके थे।
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उठना चाहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम अपनी जगह पर सोए रहो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच में बैठ गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरे ऊपर के हिस्से में कपड़ा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान का हिस्सा हजरत फातिमा के पेट से लगा हुआ था, दूसरे रान का हिस्सा हजरत अली के पेट से लगा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रान की बुरूदत को, उसकी ठंडक को मैं अपने पेट में महसूस करता। बाप कभी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ बेटी है, दूसरी तरफ दामाद है, बीच में बैठे हुए हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं बेटी मुझे मालूम हुआ तू मिलने आई थी, मुलाकात नहीं हो सकी, मामला क्या है? मेरे भाइयों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अब्बा हुजूर मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ बांदियां आई हैं, मेरा चक्की पीसने की वजह से हाथ में घट्टे पड़ गए हैं, पानी ढोकर लाने की वजह से सीने पे दाग पड़ गया है, दिन भर आपके नवासों की खिदमत करती रहती हूं, आपके दामाद की खिदमत में लगी रहती हूं, अगर हो सके तो मुझे भी एक लौंडी या एक गुलाम इनायत फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लौंडी और गुलाम बांटने वाले अपनी बेटी से कहते हैं बेटी क्या मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ ना बता दूं, एक ऐसा वजीफा ना बता दूं जो तुम्हारे लिए गुलामों से ज्यादा बेहतर हो? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं क्यों नहीं अब्बा हुजूर, जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा से कहते हैं जब तुम अपने बिस्तर पर सोने आओ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। ये वो वजीफा है जो तुम्हारे दिन भर के थकान को दूर कर देगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने बच्चियों को सही तरबियत करो, उनको अपने घरों को आबाद करना सिखाओ, उनको बताओ कि जिस घर में तुम्हें शादी करके भेजा जा रहा है वही तुम्हारा घर है, वहीं तुमको जिंदगी गुजारनी है, वहां इज्जत के साथ अगर तुम रहोगी तो तुम्हारे माँ बाप का सर ऊंचा रहेगा। अगर वहां तुमने पहुंच करके अपनी इज्जत को महफूज नहीं रखा तो तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाएगा। हमने अपने बच्चियों को ये तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा अभी तक तुम एक बेटे की हैसियत से थे, अब तुम एक शौहर की हैसियत से भी तुमको जिंदगी गुजारनी, तुम एक जिम्मेदार शौहर बन करके जिंदगी गुजारो। अब तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है, उसके दुख सुख में तुमको काम आना है, उसकी जरूरतें तुमको पूरी करनी है। तो मेरे भाइयों, तालीम के साथ साथ तरबियत भी जरूरी है। अपने बच्चों को बचपन से ही तरबियत दें और जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ती जाती है उसी कदर उनको जिम्मेदारियां देते जाएं ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। हमारे माँ बाप ने अगर हमें तरबियत ना की होती, हमें जिम्मेदार ना बनाया होता तो यकीनन ये बातें हम आपके सामने नहीं कर सकते। यकीनन हमारे असातिज़ा की मेहनतें, माँ बाप की दुआएं, बड़ों और बुजुर्गों की खिदमत हमें इस मकाम तक पहुंचाई। अगर हम ऐसे मौका पर उन बुजुर्गों को ना याद करें या उनके लिए दुआएं ना दें तो बड़ी ही नाशुक्री होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन को और हमारे असातिज़ा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जिन्होंने भी हमारी तरबियत में हिस्सा लिया है, हमें इस लायक बनाया कि हम आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर सकें, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाए। हमारे बच्चे जिन्होंने तोतली जुबान में, टूटी फूटी जुबान में कुरान मजीद की सूरतें पढ़ी, नबी की अहादीस सुनाया, दुआएं सुनाई, हम दुआ करते हैं यही बच्चे हमारे लिए मुस्तकबिल हैं, यही कौम के मेमार हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों से दीन का काम ले। हमारे असातिज़ा ने जो इनके ऊपर मेहनत की है, असातिज़ा ये कौम के मेमार होते हैं, कौम के इन बच्चों को आपके हवाले किया गया है इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि आप दीन के रहबर और रहनुमा हैं, आप हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। असातिज़ा को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, अल्लाह से डरते हुए अपने बच्चों को पूरा वक्त दें और उनकी सही तरबियत करें, वरना क़यामत के दिन हमें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा कि कौम के बच्चों को आपके हवाले किया गया था, आपने उनकी सही तरबियत क्यों नहीं की।
आपने उनको सही वक्त क्यों नहीं दिया? इसलिए असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि ये बच्चे, ये कौम के बच्चे आपके हाथ में हैं, इनको बनाना और संवारना आपके हाथ में है। इसलिए अल्लाह से डरते हुए इनकी सही तरबियत करें और इसका मकाम बहुत ऊंचा है। दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आला मकाम दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा इंसान है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। दोनों को बैक वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर का लफ्ज कहा, असातिज़ा के लिए भी और तलबा के लिए भी। इसलिए दोनों को जरूरी है कि एक दूसरे का एहतमाम करें, एक दूसरे का ख्याल करें। असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को कौम की अमानत समझते हुए उनकी सही तरबियत करें, और बच्चों को चाहिए कि अपने असातिज़ा के मकाम और मर्तबे को समझें और उनको अपने बाप की तरह से दर्जा दें। क्यों? इसलिए कि आपके असातिज़ा हैं, इन्होंने ही आपको चलना सिखाया, इन्होंने आपको दुआएं सिखाई, इन्होंने नमाज का तरीका बताया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमाए। जिन लोगों ने ये इदारा बनाया है, जो इसकी बुनियाद रखने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी औलाद जो इस जिम्मेदारी को संभाले हुए है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए। इस नेक काम में जो लोग उनके मुआविन और मददगार हैं, उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं कि वो अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। ये इस्लामी मदारिस, ये दीन के किले हैं, इनकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मदरसों की हिफाजत फरमाए, हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों की हिफाजत फरमाए, हमारी जामियात की हिफाजत फरमाए, हमारे असातिज़ा की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमको दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।